Alright, Ji. Alright, Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Today, the topic that I've chosen will be the further revelations. But a commonly asked question from 2009 till 2023, it has been asked somewhat around 7 times. ठीक है जी, it's always going to be question number 2 of the paper number 1 and is going to be a compulsory question. होगा compulsory. Question number 2 होगा paper 1 का and it is going to be for the revelations from 610 to 632 AD. Further revelations का जो question आता है, kindly note one thing and that is कि जो pattern है that remains the same. हम pattern के ऊपर discuss करने वाले हैं, इसके साथ साथ ही जो भी इसकी importance है, important चीज़ें हैं वो हम साथ साथ discuss कर लेंगे. The first thing is that you need to know about the first revelation and that you need to know in roundabout 2 lines only. That the first revelation came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the year 610 AD. The first 5 verses of Surah Al-Alaq were revealed. Quote देना है, दे दीजिए, नहीं भी देंगे तो that is not a problem. The next thing that you need to talk about is the Fatra period. This was the relaxation in the revelations. बेटा गौर से लिख लीजिए, relaxation in the revelations that was there. और ये जो relaxation in the revelations है बच्चे, इसका टाइम पीरियड काफी कॉन्ट्रडिक्टिंग है. सम सोर्सेस से that it was for a few days, some sources say it was for a few months, some sources claim it was for a few years as well. लेकिन आपने बताना है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली रेवलेशन के बाद आया एक गैप. दिस गैप was round about 6 months. For 6 months there was a gap. पहली रेवलेशन के बाद 6 महीने तक कोई और रेवलेशन नहीं आई. Then came सूरह मुदस्सिर और सूरह मुदस्सिर में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, O you wrapped up in a mantle, arise and deliver the warning. O you wrapped up in a mantle, arise and deliver the warning. इसके आप बेटा कोई और भी ट्रांसलेशन यूज कर सकते हैं. It is not mandatory, not necessary to use the translation that is only written in one single piece of notes. ये सिर्फ और सिर्फ बात ही एक ठीक है. इंपॉर्टेंट ये है कि क्योंकि कुरान मजीद की इतनी ट्रांसलेशन हुई हुई है, यू कैन पिक एंड चूज एन ईजियर वन एज वेल, यू कैन पिक एंड चूज ए लेटर इंग्लिश वन एज वेल. जौन सा दिल करे उस ट्रांसलेशन को यूज कर लो. तो सूरह मुदस्सिर आई 6 महीने के बाद, which stated, O you wrapped up in a blanket, O you wrapped up in a mantle, arise and deliver the warning. Then after a few months came Surah Duha, which basically came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam after quite some wait, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam was told that by the glorious morning light and by the night when it is still, your Lord has not forsaken you. तो ये बेटा तीसरी रेवलेशन थी जो सूरह मुदस्सिर की थी. पहली रेवलेशन आई, 6 महीने का गैप आया, सूरह मुदस्सिर रिवील हुई, थोड़ा सा और गैप आया, राउंड अबाउट 3 months सूरह दुहा आई और इसके बाद रेवलेशंस केम फ्रीक्वेंटली. ठीक है जी. तो जो पहली रेवलेशंस का पीरियड था वो दैट वाज द मक्की पीरियड. ऑलराइट, मक्की पीरियड की जहां तक बात है तो दिस वाज फॉर अ टोटल टाइम पीरियड ऑफ 12 years 9 months and 5 days. You can write approximately 13 years. That will be fine as well. ठीक है जी. इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी. There were certain traits to it as well. पहली चीज ये कि the Makki surahs were revealed before the migration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to Medina. Number 2, इनका जो thematic focus था, इनके अंदर जो themes डिस्कस किए गए हैं, they were about तौहीद and the hereafter, oneness of God और day of judgment के बारे में ज्यादा डिस्कशन जो है वो की गई है. As far as their style and length is concerned, तो बेटा you need to note that the tone was a bit harsh, क्योंकि Prophet sallallahu alaihi wasallam जो है उनके ऊपर there were certain number of persecutions that were going on. तो थोड़ी सी टोन जो है दैट वाज हार्श. देन इट वाज अ पोएटिक स्टाइल, क्योंकि मक्का वाले जितने भी लोग थे ऑल ऑफ देम वर इंटरेस्टेड इन पोएट्री एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो इसका जो बेटा स्टाइल है दैट वाज पोएटिक. ठीक है जी. इसके साथ साथ द लेंथ ऑफ द सूरास वाज शॉर्ट. और आखिरी चीज, द टारगेट ऑडियंस वर द कुरैशीज दैट वर देयर. ये कुरैश के लिए जो है वो रिवील की गई थी, उनको मुतवज्जे किया जा रहा था, तो ये इनकी टारगेट ऑडियंस थी. ठीक है जी. इसके बाद यू नीड टू नो अबाउट द मदनी सूरज. मदनी सूरज का पीरियड है जी 9 years 9 months and 9 days.
ये रिवील की गई आफ्टर the migration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to Medina till his death. इनका जो बेटा थीमेटिक फोकस है, इनमें कौन कौन से थीम्स डिस्कस किए गए हैं? पहला, सोशल लेजिस्लेशन वाज डिस्कस्ड, लॉ मेकिंग. नंबर 2, गवर्नेंस के इश्यूज. नंबर 3, वॉरफेयर्स एंड ट्रीटीज. आप देखेंगे कि इसमें सारी की सारी लॉ की बात की जा रही है. व्हाई इज दैट द केस? क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम became a leader inside of Medina. That is why the focus of the themes or the themes that are discussed are basically concerned with lawmaking. इसके साथ साथ the style and length of the Madani surahs is such that they are longer and they are more detailed. एक तो ये longer भी थी, they were more detailed, and then the style was such that it was soft in tone. लोगों को बात समझाई जा रही थी. ठीक है जी. द टारगेट ऑडियंस वॉज बेसिकली द पीपल दैट वर लिविंग इन साइड ऑफ मदीना, द अंसार्स, द मुहाजिरीन. ऑलराइट. इसके साथ साथ देयर वर अ नंबर ऑफ ट्राइब्स एंड रिलीजन्स दैट वर डिस्कस्ड. अंसार्स को डिस्कस किया गया, मुहाजिरीन को डिस्कस किया गया, ज्यूज को डिस्कस किया गया, क्रिश्चियंस को डिस्कस किया गया. द स्टोरीज ऑफ द अदर प्रॉफिट्स वर टोल्ड एज वेल. दिस इज ऑल दैट वाज डन इन द मदनी पीरियड. तो बेटा ये सारी चीजें जो हैं, दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मदनी पीरियड. हमने शुरू कहां से किया था कि पहले प्रॉफिट पे आई फर्स्ट रेवलेशन 610 एडी में, फिर आया एक गैप पीरियड. गैप पीरियड पहला 6 मंथ्स का था, जिसके बाद आई सूरह मुदस्सिर. फिर इसके बाद एक और गैप पीरियड था फॉर राउंड अबाउट 3 मंथ्स व्हेन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ सर्टेन बिट sad because of the fact that revelations were not coming. तो फिर सूरह दुहा आई. अल्लाह ताला ने दिन और रात की कसम खा के कहा that I have not forgotten you. By the glorious morning light and by the night when it is still, your Lord has not forsaken you. फिर बेटा मक्की पीरियड शुरू होता है and then the मदनी पीरियड started. ठीक है जी. इसके बाद हम चलते हैं कि मक्की पीरियड की एग्जाम्पल क्या है. एक एग्जाम्पल आपने लाजमी देनी है with the circumstance that there is. You can give more than one, but टाइम कंस्ट्रेंट को माइंड में रखना बहुत जरूरी है. तो एक एग्जाम्पल इज मोर देन इनफ. एग्जाम्पल क्या देंगे आप? सूरह कौसर की. कोई और भी दे सकते हैं. सूरह कौसर was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he was called as an abtar. लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहना शुरू कर दिया. अबतर मीन्स somebody who doesn't have a progeny, जिसकी कोई आगे आने वाली नस्ल ना हो. This is something that the Qurayshites said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was worried, and then Allah revealed Surah Kausar. और सूरह कौसर में क्या कहा अल्लाह ने? He who hates you will be cut off. He who hates you will be cut off. जो आपसे नफरत करता है हम उसको अबतर बना देंगे. ठीक है जी. देन बेटा मक्की पीरियड की एग्जाम्पल दी है तो मदनी पीरियड की भी देनी पड़ेगी. एज फार एज द मदनी पीरियड एग्जाम्पल इज कंसर्न, सूरह अल फत, कुछ लोग इसे फतेह भी कहते हैं. सूरह अल फत, सूरह अल फतेह जो है, दिस वाज वन ऑफ द वर्सेस वाज रिवील्ड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया. ट्रीटी ऑफ हुदैबिया अगर आपको याद हो तो मुसलमानों ने जब ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन की, मेनी ऑफ द पीपल वर नॉट हैप्पी विद इट कि जी हमने क्यों ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन कर ली. But then what happened was कि अल्लाह की ज़ात ने एक वर्स रिवील की और इस वर्स में ये कहा गया, Verily we have granted you with a manifest victory. मैनिफेस्ट की जगह क्लियर भी लिख सकते हो. ठीक है. एंड दिस बेसिकली केम टू मेक द मुस्लिम्स अंडरस्टैंड कि आपने जो ट्रीटी साइन की है असल में आपकी जीत हुई है. ठीक है जी. इसके बाद बेटा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सेंसेशंस क्या आती थी when the revelations used to come. At multiple number of times he would sweat. पसीना आता था. ठंड हो तो पसीना आता था. ठीक है जी. गर्मी हो तो आता ही आता था. ठंड में पसीना आता था, गर्मी में at times there was shivering as well. So he started sweating, and one of this incident has been related by Zayd bin Sabit, the principal scribe of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who said that we used to see drops of perspiration roll down his forehead like pearls. हम ये देखते थे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे से जो पसीना टपकता था वो मोतियों की तरह नीचे गिर रहा होता था.
तो बेटा ये कोट देना बहुत जरूरी है। फिर बताता चलूं, द चॉइस ऑफ वर्ड्स डज नॉट मैटर as long as the meaning remains the same. Then the prophet says that the revelations were imprinted on his mind and heart. And regarding the first revelation, he said that it was imprinted on my heart as if I had known it forever. जैसे मैं उसे हमेशा हमेशा से जानता हूं या उसे हमेशा हमेशा से पढ़ा हो मैंने. So it was imprinted on my heart as if I had known it forever. तीसरी चीज क्या थी? There was a certain bit of confusion as well. Confusion भी होती थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रेवलेशंस आती थी. और चौथी चीज, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फेल्ट पेन एज वेल. और कंपेनियंस का ये कहना है दैट द पेन वाज सो इमेंस, इतनी ज्यादा पेन होती थी दैट ही वुड हाइड हिज फेस बिटवीन हिज नीज. दैट द प्रॉफिट हिड हिज फेस बिटवीन हिज नीज. अपने दोनों घुटनों के दरमियान अपने मुंह को जो है वो रख लिया करते थे. तकलीफ इस शिद्दत की होती थी. ठीक है जी. तो मेरा बच्चा, आपने सेंसेशंस के बारे में जब बताना है, दीज आर द 4 सेंसेशंस दैट यू नीड टू टॉक अबाउट. यहां पे वेट गेन वगैरह का जिक्र आपने नहीं करना है. वेट गेन हम अलहदा से जिक्र करेंगे ऐसे कि वेट गेन की 2 एग्जांपल्स हैं. द फर्स्ट एग्जांपल इज दैट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज राइडिंग अ कैमल दैट यूज्ड टू हंच ऑन इट्स बैक. जिस ऊंट पे वो जा रहे होते थे, जब रेवलेशन आती थी तो ऊंट नीचे की ओर बैठ जाता होता था, क्योंकि प्रॉफिट का वेट इतना ज्यादा हो जाता था दैट द कैमल वुड हंच ऑन इट्स बैक. एंड देन द कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट, द प्रिंसिपल स्क्राइब Zayd bin Sabit stated that once when the revelation came, the holy prophet's thigh was on my thigh. ऐसे बैठे हुए थे that the prophet's thigh was on the thigh of Zayd bin Sabit. And Zayd bin Sabit says that his thigh got so heavy that I felt as if my leg would break. तो ये बेटा एग्जाम्पल्स हैं प्रॉफिट की वेट गेन की जब भी उन्हें रेवलेशंस आती थी. फिर there were multiple forms of angel in which the angel used to come. Sometimes he would come in the form of a man and used to resemble a companion of the prophet, the Hayal Kalbi. इसके साथ साथ यहां पे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कोट अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए कि हजरत उमर ने कहा that we noticed that a person came to the prophet sallallahu alaihi wasallam, no signs of travel were evident from his face and hair. He had pitch white clothes and extremely black hair. He came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, rested his palms on his palms and said, "O Muhammad, tell me about Islam." तो बेटा ये ऑप्शनल कोट है, देना चाहो तो मर्जी है. बाकी अगर सिर्फ यही लिख देंगे आप कि he came in the form of a man and resembled the companion of the Prophet, the Hayal Kalbi, that is more than enough. इसके साथ साथ the angel Jibrail used to come in his original form as well. ओरिजिनल फॉर्म के बारे में अल्लाह की ज़ात ने इसका जिक्र किया है सूरह नजम में. एंड इट सेज दैट व्हाइल ही द एंजल जिब्राइल वाज इन द हाईएस्ट पार्ट ऑफ होराइजन. तो ये जिक्र इसरा मिराज की जर्नी का और उसमें क्या बताया गया है that angel Jibrail was in the highest part of the horizon. That is when the prophet peace be upon him saw him. यहाँ पे आप ये भी बता सकते हैं that angel Jibrail, one of the hadith of the prophet says that angel Jibrail had 600 wings loaded with pearls. Loaded with pearls. बेटा आप बताना चाहो तो ये भी बता सकते हो. ठीक है जी. अब हमने क्या क्या कर लिया? We are done with the sensations. We are done with the weight gain. We are done with the forms of angel. अब आया modes of revelation कि revelation आती थी तो कैसे आती थी. The Prophet sallallahu alaihi wasallam would receive revelation. Sometimes they were articulate. The other times they came in as the ringing of the bells. Prophet sallallahu alaihi wasallam की इसके ऊपर हदीस है that sometimes it came to me as the ringing of the bells and sometimes it was clear and articulate as if the angel was talking to me from behind a veil. कि कभी कभी जब रेवलेशन आती थी मुझे ऐसे लगता था कि घंटियां बज रही हैं. और ऑब्वियसली जब कोई बात कर रहा हो और घंटियां बज रही हो देन ऑब्वियसली द वर्ड्स आर नॉट क्लियर. एंड देन द प्रॉफिट सेड दैट समटाइम्स इट वाज क्लियर एंड आर्टिकुलेट, बिल्कुल साफ शफाफ.
As if the angel was talking to me from behind a veil. मुझे लगता था कि मेरे और एंजल के दरमियान एक पर्दा लगा हुआ है और पर्दे के पीछे से वो मुझसे बात कर रहे हैं. अगेन बच्चे, कोटेशन बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपने मोड्स ऑफ रेवलेशन लाजमी लिखने हैं. अब मिस्टेक स्टूडेंट्स जो है, व्हाट इज द मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक, इसके सेंसेशंस में ही वेट गेन भी डाल देते हैं, इसके साथ ही फॉर्म्स ऑफ एंजल भी लिख देते हैं, इसके साथ ही मोड्स ऑफ रेवलेशन भी लिख देते हैं. एक खिचड़ी सी बन जाती. ऑलराइट, इट्स अ मिक्स ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स whereby it's not clear as to what the student is talking about. So the reality of the matter is that you need to make sure that you write each part distinctively so that it's clear to the examiner as to what you're writing. Alright? Moreover, as far as the revelations were concerned, they were not in control of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. They could come whenever Allah subhanahu wa ta'ala wanted. I told you that some of the revelations came to the Prophet while he was traveling inside of the desert. कभी कभी वो डेजर्ट में जा रहे होते थे तो रेवलेशन आती थी. He was riding his camel, रेवलेशन आई, कैमल बैठ गया, प्रॉफिट का वेट बहुत ज़्यादा हो गया. Then these revelations were safeguarded by Allah subhanahu wa ta'ala. Alright, Allah was the one that was safeguarding all these revelations. And then we have two distinct revelations. इनके circumstances बताना मत भूलिएगा. The first one is Surah Maida verse number 3. है ये वर्स बहुत बड़ा, उसमें से हम एक पार्ट ले रहे हैं. That this day we have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your deen. अब ये दीन की जगह मैं रिलीजन भी लिख सकता हूं कि जी आज के दिन हमने आपका रिलीजन आप पे परफेक्ट कर दिया है, अपना जो एहसान है आप पे पूरा कर दिया है और आपके लिए इस्लाम को आपका दीन मुकर्रर कर दिया है. So this is a very important reference that you need to give. Why is it important? Because this was the last revelation of the Quran, and this came in the final year of the Prophet's life. ये Prophet के final year में reveal की गई थी. इसके साथ साथ another revelation is of utmost importance, that is Surah Baqarah verse number 285 and 286. They were directly revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam through Allah on the journey of Isra Miraj, and this is one distinct revelation क्योंकि बाकी सारी तो एंजल जिब्राइल ने दी, and this revelation was given to the Prophet sallallahu alaihi wasallam directly by Allah. एक और चीज that marking scheme mentions as well, that sometimes the revelations came to him in his dreams. आप अगर ये लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा. Since I do not personally believe in it as such, ठीक है कि रेवलेशन जो हैं वो उस पर्सनली बिलीव, आई डू पर्सनली बिलीव दैट रेवलेशंस केम थ्रू डिफरेंट वेज. बट कहने का मेरा मकसद ये है कि ये इसकी जो हिस्टोरिक एविडेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है. ठीक है, बट इफ द मार्किंग स्कीम सेज इट तो हम भी लिख देंगे. इज दैट क्लियर टू यू? तो आपने बेटा क्या क्या बताना है कि मोड्स ऑफ रेवलेशन में इसको डालना है आपने, कि मोड्स ऑफ रेवलेशन में एक तो रिंगिंग ऑफ द बेल्स था, एक क्लियर एंड आर्टिकुलेट था, एंड समटाइम्स द रेवलेशन केम टू हिम इन हिज ड्रीम्स. इसके साथ साथ ये जो दो डिस्टिंक्ट रेवलेशंस है मैंने आपको बता दी हैं. अ क्विक राउंड अप, अगर राउंड अप हम करें कि जब भी सवाल पूछा जाएगा, राइट एन अकाउंट ऑन हाउ द कुरान वाज रिवील्ड टू द प्रॉफिट फ्रॉम द ईयर 610 AD टू 632 AD. शुरू करना है फर्स्ट रेवलेशन से, फतरा पीरियड को करना है मेंशन, फिर करना है मक्की पीरियड को मेंशन, फिर करना है मदनी पीरियड को मेंशन और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देनी है, फिर मक्की पीरियड की एग्जांपल देनी है, मदनी पीरियड की एग्जांपल देनी है along with the circumstances. Then you need to talk about the sensations that are there along with the relevant quotations. Then you need to talk about the weight gain of the prophet alongside the relevant quotations. फिर forms of angel के बारे में बताना है और उसके बाद modes of revelation का जिक्र करना है. फिर बताना है कि रेवलेशंस प्रॉफिट के कंट्रोल में नहीं थी, दे वर सेफगार्डेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला. और बाद में दो डिस्टिंक्ट रेवलेशंस का जिक्र आपने करना है, सूरह माइदा वर्स 3 एंड सूरह बकरा. हमने फर्स्ट रेवलेशन का जिक्र तो पहले ही कर दिया हुआ है, तो लास्ट रेवलेशन का जिक्र करना है यहाँ पे. और इसके साथ साथ दिस इज द रेवलेशन दैट केम ऑन इसरा वल मिराज. दिस इज इट फ्रॉम माई एंड. आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.